recording also again. जी जी। तो अब जो आप जो बात कर रहे थे ना, अब जी एक जी। डेवलपमेंट बड़ी यूनिक सी हुई है जो जी जी। हमें अलाउ करती है कि पाकिस्तान में जो जो प्रोजेक्ट्स हम करना चाह रहे हैं ना, जी वो जी। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज चेंज होती रहती है ना, गवर्नमेंट जी चेंज जी। हुई तो पॉलिसीज चेंज हो गई, ठीक है ना। बिल्कुल। एक इदारा है यूएसए के अंदर विच इज द फर्स्ट नेशन पीपल, आप ठीक वाकिफ है। होंगे, ठीक है ना। तो one of those most of the first nation tribes, 3000 of them are there in North America, everybody surrendered, ठीक है ना। तो उसमें जी से जी। जी जी। एक ट्राइब जॉर्जिया में है, उसे ओके। कहते हैं द स्टेट ऑफ SCNRFP। जी जी। तो अब ये कि वो जो उनका जो पूरा सिस्टम है, दे आर इन 39 कंट्रीज एंड वो कहते हैं कि भाई हम स्टार्टअप न्यूयॉर्क इंसेंटिव्स के चक्कर में थे, हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट न्यूयॉर्क में करवाने के बाद, बिकॉज आई लाइक दैट स्टार्टअप न्यूयॉर्क प्रोग्राम। इफ यू सेट अप जी a business in a university campus, you get about जी। जी 10 years tax breaks and stuff like that, बहुत अच्छा प्रोग्राम न्यूयॉर्क में डेवलप हुआ है। तो I used to I liked that program, but then Chief Musti said that, okay, I can give you lifetime incentives. Incorporate your company in the state of SCNRFP. तो अब ये कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी अब ये बनी है कि I am officially representing state of SCNRFP in Pakistan as an emissary. Stand SCRNP stand for what? Sorry. SCNRFP, Southern SCNR. Cherokee Nation Red Fire People. Okay. I will send you the links and everything else. So what we are planning to do is this, that, okay, enormous amount of land is available. There are a lot of Sikh institutes in Pakistan. One of them in Karachi is, Pakistan Machine Tool Factory, which is closed down, and, a 200-acre site, very Yes, I close know. to, very close to cattle colony and EPZ is Yeah. closed down, So what we were thinking of doing was that, we can adopt those sites, convert them into the Sams Aligarh Muslim Tijarat University campus town, and then make that site a diplomatic enclave of the state of SCNRFP, which essentially means that, all the investment, I am talking about at least getting $1 billion investment into one campus. Okay. तो अगर इतनी इन्वेस्टमेंट हम लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट इंसेंटिव्स टू द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन आवर कैंपस टाउन, as a company or as a whatever activity you want to do. But now you are living in a diplomatic enclave and enjoying this benchmark kind of incentives of doing global business. तो उससे क्या होगा कि भाई अगर आप ये समझ लीजिए कि भाई along CPAC, number of these campuses can be built, ठीक है ना. And if we are building this campus, and if that campus becomes a diplomatic enclave of SCNRFP, then at least $1 billion investment is coming into each one of these campus, and we can make a series of them. Okay. तो ये एक हम अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जरूरत तो है, डेफिनेटली इंडस्ट्रीज आर कमिंग, एंड and we want to really work with PM Imran Khan to really get all the industries. For instance, DMCC is very famous in Dubai. DMCC, जी जी, जहाँ पे पूरी गोल्ड एंड डायमंड की जो ग्लोबल ट्रेडिंग होती है ना, वो DMCC में होती है, दुबई में, ठीक है ना. तो वो हमारा आइडिया वो है कि भाई इफ वी कैन सेट अप समथिंग लाइक दैट in these sick areas like say Pakistan Machine Tool Factory, then वहां पे बन सकती है ये DMCC. और अभी हमारा पहले ये था कि भाई different models we were looking at. तो अभी ये कि you can design, plan, present all the wonderful models, but people are always asking, has something been built? जो आप बात कर रहे हो बना है कि नहीं बना, बना है तो दिखा दो कहाँ बना है ये कैंपस टाउन भाई, ठीक है ना. जी जी. अब ये हुआ है कि मुंबई के अंदर इज अ वेरी क्राउडेड एरिया नोन एज भिंडी बाजार.
ठीक है ना, जी जी बिल्कुल डेंस एरिया है, बड़ा मतलब गंदा एरिया है, ठीक है ना। ठीक है अच्छा, अब ठीक है। वो सैयदना ने ये कहा कि भाई हमें इस भिंडी बाजार के एरिया को री इंजीनियर करना है, ठीक है ना। तो हम्म। बेसिकली 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्च हुआ वहां पे, इन मुंबई, जबरदस्त। ठीक जी है। जी तो अभी फायदा ये हुआ है कि भाई उसका पहला जो स्ट्रक्चर है ना, जिसके अंदर 1 एकड़ के ऊपर अबाउट 700 मकान की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उन्होंने बना ली है, with all the ठीक है current best technologies and all the people who were sort of relocated from there, जो वहाँ रहते थे, जी उनको जी दोबारा इस नए मकानात के अंदर जो है ना हैंड ओवर उन्होंने किया और सारी बातें की। तो एक मतलब एक मॉडल हमारे पास तैयार हो गया कि हाँ भाई दिस गुड। मॉडल is working, and if it can happen in a very dense populated area like Mumbai with lot of challenges there, you know, I mean the same model can be duplicated with ease in everywhere else. तो हमने फिर ये बना लिया कि भाई हमारा ये सैम्स व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल 700 होम सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी जो है ना, वो इस हमारे सैम्स अलीगढ़ मुस्लिम तिजारत यूनिवर्सिटी क्लाइमेट स्मार्ट कैंपस टाउन का हिस्सा बनेगी। तो ये कम्युनिटीज भी डेवलप हो गई, इसके साथ साथ बिल्कुल वी आर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज ऑल्सो, और जो है ना एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी फॉर यू नो एवरीवन, एंड इकोनॉमिक वाइब्रेंसी गारंटी हो जाती है। ये डेफिनेटली बिल्कुल। सारे बिजनेसेस, ग्लोबल बिजनेसेस आएंगे उस जगह पे जहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट उनको सिक्योर लगेगी। सो वी आर एक्चुअली सिक्योरिंग देयर इन्वेस्टमेंट बाय यू ओके। नो पुटिंग दिस कैंपस टाउन्स व्हिच इज यूनिवर्सिटी कैंपस। तो यूनिवर्सिटी कैंपसेस के साथ किसी को झगड़ा नहीं होता ना, ठीक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। अगर इस्लामाबाद में तो वैसे ही बहुत सारे डिप्लोमेटिक यू नो एम्बेसीज वगैरह है ही ना। तो हम तो ये भी या या यू नो प्राइम मिनिस्टर साहब को रेकमेंड कर रहे थे कि भाई बेंचमार्क किस्म का जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव और यूनिवर्सिटी बन सकती है, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस तो दे ही दिया है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, यू नो। या या सो गिव अस दैट एंड वी विल रियली make a benchmark university there where all the leading you know scientists, engineers, innovators will come and do research, because उससे या प्राइम मिनिस्टर हाउस से बेहतर तो कोई जगह हो ही नहीं सकती ना, यू नो, या रिसर्च करने या की, और सेफेस्ट एंड सिक्योरेस्ट प्लेस, यू नो। तो ये मतलब हमारा मॉडल है कि भाई ये इनिशिएटिव्स जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लिए हैं ना, हम चाहते हैं कि भाई वो उनकी सारी जो ड्रीम्स है उसको हम एजिलिटी के साथ रियलाइज करें, यूटिलाइजिंग द करंट बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज, bringing in, and you've just said it very right, that China wants to download all these, they call it low tech. Now they are interested in, you know, going to हाई टेक। space and Mars and high tech, you know, they are talking या about, you know, doing that kind of work. So all these traditional industries वो download करना वैसे ही चाह रहे हैं, you know, and बिल्कुल that कर रहे हैं all of that can come to Pakistan. And we, like you said it very right, made in Pakistan for China and the world. या Of course, China is our biggest, customer, and China is our biggest friend. So, you know, China would always help us, and you know, to grow, develop, and then when Pakistan develops, it's beneficial for China. जी। Pakistan steel mill, I call it a dead gold mine. Exactly. It's a gold mine for Gold Pakistan. mine. कि अगर हम इसको यूटिलाइज करें, इस ऑन द सी साइड, Right. कि जहाँ पर which is the right place, कि जहाँ से आपकी शिपमेंट इन एंड आउट हो सकती है। बिल्कुल। गवादर इज नेक्स्ट डोर, Yep. और it's got the basic necessities जो चाहिए, जो किक ऑफ करने के लिए। we just need a will and doers to get it working. Yep. हमने एक चीज़ और भी रियलाइज की सेंसर इंडस्ट्री में कि वी आर, क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल स्मॉल वॉल्यूम पे शुरू कर रहे हैं, तो हमें एल्युमिनियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत है, बिल्कुल। एल्युमिनियम की, क्योंकि सेंसर्स में एल्युमिनियम इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट। अब ये एल्युमिनियम हम चाइना से मंगवा रहे हैं, और हमें पता चला कि चाइना के अलावा जो है और कोई सस्ता नहीं बेच रहा। लेकिन हमें, जब हमने जो वक्त गुजरा, हमने रिसर्च की, तो हमें पता चला कि चाइना तो एल्युमिनियम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। चाइना कहाँ से लेकर आ रहा है एल्युमिनियम? चाइना तो अफ्रीका से लेकर आ रहा है। राइट। तो
चाइना अफ्रीका से लेकर आ रहा है और उसमें वैल्यू एड रॉ मटेरियल अफ्रीका से शिप भर के लेकर आ रहा है एंड देन डाउनलोडिंग इट टू शंघाई एयरपोर्ट देन टू डिफरेंट रिफाइनरी प्लांट्स और वो तकरीबन आप उसको यकीन करें कि 30 to 40 टाइम्स वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो वहां से जो खरीदते हैं 30 to 40 टाइम सिर्फ उसको रिफाइन करके उसको एल्यूमिना बनाकर और उसको मुख्तलिफ एलॉय बनाते हैं बिल्कुल सो हमने ये सोचा कि why can't we do this it's only a small investment कि जो एल्यूमिनियम को आप सिर्फ प्यूरिफाई करें और सारी दुनिया को सप्लाई करें बिल्कुल और दूसरा ये है कि आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान में हम लोग एरोस्पेस इंडस्ट्री हमारी जो है जो हमारे दिफा की जहाज जितने बन रहे हैं हम लोग भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम इतने अरसे से हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारी अपनी लोकल इतनी डिमांड है पाकिस्तान के अंदर ही कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी तक जिन्हें इस टाइप की एल्यूमिनियम एलॉय जो हम सेंसर्स में इस्तेमाल करते हैं उसकी ज़रूरत है लेकिन वो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से इतने एक्सपेंसिव तो अगर हम ये चीज़ खुद बनाने शुरू कर दें और उसके लिए भी हमने प्लान किया कि इनिशियली ये 2 और 3 स्टेजेस का प्लान हो सकता है दैट्स अगेन कि इवन ये कि हम एक्सट्रूजन प्रोसेस जो होते हैं एल्यूमिनियम के वो हमारे पास इवन नहीं है कि आप अगर सिर्फ एल्यूमिनियम को एक खास रॉ मटेरियल की शेप में अगर आप लें यानी कि एक तो होता है ना जो माइन से निकलता है उसके बाद उसके बाद एक फर्स्ट प्रोसेस होता है फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस ये है कि उसको आपने एलॉय बनाना है ठीक है मुख्तलिफ एलॉय एक तो एलॉय वो होता है जो आप जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल विंडोज डोर्स वगैरह के लिए तो वो लो क्वालिटी एल्यूमिनियम है लेकिन इसके ऊपर जो है ना हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम है कुछ एल्यूमिनियम जो आप स्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं कुछ एरोस्पेस में कुछ जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सेंसर्स में इस्तेमाल करते हैं हाई प्रीसीजन के लिए ये तमाम एल्यूमिनियम हाई वैल्यू एल्यूमिनियम है और तमाम दुनिया को ये एल्यूमिनियम चाहिए और ये खरीदते हैं और यूके में तो बन नहीं सकता यूरोप में बन नहीं सकता ये क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई है ये सब ये चाइना से और मिडिल ईस्ट से आ रहा है ठीक है तमाम तो ये पाकिस्तान के लिए सी साइड के पास ये जो फैसिलिटी है ये आइडियल फैसिलिटी है कि यहाँ पर या इस तरह की और लोकेशन पे हम ये एल्यूमिनियम बनाकर वी जस्ट शिप इट बैक टू द वर्ल्ड और दूसरा ये कि हमारी अपनी डिमांड भी पूरी हो जाएगी ये बजाय इसके कि हम 2 महीने 3 महीने हम इंतजार करते हैं चाइना से मटेरियल आए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्डर करते हैं तो इस जस्ट के हमारे पास अपनी अवेलेबिलिटी हो अपनी रिसोर्स हो तो देयर आर सो मेनी तो हमने अंदाजा लगाया कि हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड विद सेंसर्स तो ओवर 30 न्यू इंडस्ट्रीज विल कम अप जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंसर्स और इसके साथ एक और जनरेशन है जो जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि स्मार्ट सेंसिंग में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चाहिए ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हम ये चाहते हैं कि इसको फ्यूचर में ओपन करें दुनिया के लिए तो ये तमाम चीजें जो है हम लोग चाह रहे हैं लेकिन क्योंकि हम अपने साथ लाइक माइंडेड आप जैसे लोग और बाकी तमाम लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो हमारे साथ काम करें और इस प्रोजेक्ट को इस शोबे को मजीद आगे लेके जाएं लेकिन ये हमारी फर्स्ट विजन है सेंसस की इसके अलावा सेकंड विजन है इलेक्ट्रिक मोटर्स की करेक्ट कि इलेक्ट्रिक मोटर इज अनदर इंग्रेडिएंट जो एक तो सेंसिंग डिवाइस होगी एक एक्चुएशन डिवाइस कि फ्यूचर में तमाम जितनी इंडस्ट्री है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही है वहाँ इलेक्ट्रिक मोटर छोटी सी साइज से बड़े साइज तक ऑल द वे टू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तो हम ये सोचे थे कि 2 व्हीलर्स जो है तकरीबन 2 बिलियन पाकिस्तान की डिमांड है 2 व्हीलर्स की और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं है जो इलेक्ट्रिक मोटर्स को बनाता हो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजी वो एफिशिएंसी जो इलेक्ट्रिक मोटर में या इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाहिए बाइक में चाहिए वो नहीं है तो ये एक रिलेटिवली स्मॉल प्रोजेक्ट है जो हम 1 साल के अंदर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं लेकिन इसके लिए भी ये है कि हमें लाइक माइंडेड लोगों की जरूरत है और हम ये भी सोच रहे हैं कि ये जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है शेंजन में मैंने उनके साथ फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव हम लोग उनके कस्टमर थे
तो उस लिहाज से या कि मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया और मैंने देखा कि हांगकांग में से स्टार्ट किया था इन्होंने और दिस इज नाउ लाइक लिटरली 30+ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री फॉर जो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर सप्लाई करती हैं तो पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक मोटर सप्लाई करती हैं और ये हांगकांग से स्टार्ट हुई थी अभी शेंजन मोटर और अब ये है कि इसको और बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज के साथ इनका मर्जर्स हुआ है. So those are the things कि हमें इन चीज़ों को स्टार्ट करना है पाकिस्तान के अंदर from a small scale but thinking vision should be very big. vision हमारी और opportunities हैं हमारे पास. हमारे पास इस तरह के डेड गोल्ड माइंस जगह जगह पर हमारे पाकिस्तान में हैं. Just need to revive them. Correct. और हमारे पास यंग जनरेशन माशाल्लाह इतनी जबरदस्त यंग जनरेशन है कि अब हमारे साथ कराची में हमने पहली कंपनी स्टार्ट की है. सो यंग जनरेशन इज सो ब्रिलियंट. एनईडी यूनिवर्सिटी के और इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी उसके यंग जनरेशन दे रियली वांट टू लर्न, वांट टू. और हम लोग ये है कि हम लोग रेगुलरली एवरीडे स्किल्स डेवलपमेंट की मीटिंग्स करते हैं. हम अपने कौन से स्किल्स जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर करने की तरफ सोचते हैं एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. यानी कि प्रोजेक्ट की रियल लाइफ प्रोजेक्ट में स्किल्स डेवलपमेंट किस तरह होती है. सो दे आर लर्निंग वेरी वेल और दे लर्निंग न्यू थिंग. दे वांट टू लर्न अबाउट फंक्शनल सेफ्टी कैसी होती है. They want to learn about cyber security. Cyber security is another big thing. Another big area. Big area. तो ये तमाम चीजें ये हैं कि इस वक्त चाइना को इनको जरूरत है क्योंकि चाइना में अभी ये स्किल्स नहीं है. So जितने जल्दी हम लोग इनको लर्न करें और इसमें मास्टर हों, we can provide this knowledge back to China. Definitely. और so ये इस तरह की हमारी सोच है कि we want to reduce the जितनी हमारी जो प्रॉब्लम्स है मेन वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हैं, लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से हैं और उसकी वजह ये है कि हाँ वी डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हम लोगों को करना क्या चाहिए. और कुछ ये है कि गाइडेंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इतनी ज़्यादा क्लियर गाइडेंस अभी तक नहीं आई. लेकिन ये है कि हम उनके साथ भी चल रहे हैं, उनके साथ भी उनको समझ रहे हैं और ताकि हमें भी उनके साथ समझ जाए प्रॉब्लम्स और वो हमारी भी समझें. तो उस लिहाज से भी उनसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और बाकी तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं वो मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ भी हमारी रेगुलरली अपडेट्स होती रहती हैं. तो अब आप बताइए कि किस तरीके से हमें गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं और वी वांट टू चेंज द फेस ऑफ पाकिस्तान. करेक्ट. एंड आई थिंक जो इनिशिएटिव ये है कि ऑलरेडी ले चुके हैं हम, ठीक है ना, और प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि भाई हर चीज़ जो है मेड इन पाकिस्तान बने, ठीक है ना, और हमारे यहाँ रॉ मटेरियल जो है ना एक्सपोर्ट ना हो. एक्सपोर्ट खत्म ही कर दो रॉ मटेरियल का भाई, कि हम जहाँ पे माइंस हैं, जहाँ से रॉ मटेरियल निकलता है वहीं पे हम उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे. और हमारा एक मॉडल अफ्रीका में ये बना है कि भाई अफ्रीका में गोल्ड एंड डायमंड माइंस आते हैं, राइट. एंड आई टोल्ड यू दैट आई सॉर्ट ऑफ गॉट दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी दैट आई बिकेम अ गोल्ड एंड डायमंड माइनर एज अ फूड साइंटिस्ट. हमारी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है तो आप जो है ना डफ डायमंड्स और डोर गोल्ड वगैरह ले जाओ दुबई में बेचो और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वापस लेके आओ. तो which was a very nice kind of a Islamic way of doing business, which is bartering what they have with what I can offer them. ठीक है ना. तो इस तरीके से ये बार्टर का सिलसिला बना. And now we have got this beautiful opportunity of transforming all the gold and diamond mines basically of Africa, ठीक है, into these climate smart university campus towns. ये पहला मॉडल डेवलप हुआ ना इस तरीके से. अब ये सिलसिला ये हुआ कि भाई गोल्ड एंड डायमंड माइंस आर एवरीवेयर. हमारे मतलब सिंस आई एम इन द गोल्ड एंड डायमंड ट्रेडिंग, so most of the people who are in the trading, they come up with this. So I said, well, instead of just doing trading, it's a good idea to acquire the mines. And mining is not an easy job.
And most of the gold and diamond miners, they are struggling. Because, you know, matlab hai ki after 1 ton, if you cannot really get 1.5 or 2 grams of gold out of it, it's not feasible, you know. So वो industry इस तरह की है. तो हमारे पास ये है कि I have got number of gold mines now available, you know, which are available for sale. And हम कहते हैं कि भाई आ जाओ, हमसे joint venture agreement कर लो. अगर outright बेचना चाहते हो तो हम खरीद भी लेंगे आपसे. लेकिन हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि भाई अगर आप क्या गारंटी देते हो कि गोल्ड विल ऑलवेज यू नो अप्रिशिएट, ठीक है ना, और वो जैसे नीचे नहीं आएगी प्राइस गोल्ड की. मैंने कहा देखो यार, हम जो गोल्ड माइन खरीद रहे हैं ना, उसमें से मैंने ये सोचा कि भाई प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है भाई प्रोडक्शन करने की? कि भाई द गोल्ड विच आई नो वेयर इट इज एंड आई हैव गॉट अ स्कैनिंग टेक्नोलॉजी जो एक एक स्क्वायर इंच को स्कैन करके मुझे बता सकता है कि वेयर माय एसेट इज. तो मैंने कहा द बेस्ट प्लेस टू कीप द एसेट इज वेयर इट इज नाउ. इट इज सेफ, राइट? If I do all the hard work of taking it out, then I have an you know issue of really securing it in those high you know volts and stuff like that. So I don't need to worry about doing it. And the currently available gold in the world, people don't eat gold. It's there. So whatever has been mined is there. So we have to just keep on you know reprocessing it. You know, get all the contaminated gold you know available in the market, transform it into our hollow chain bars, and those bars will always be in a limited supply, because wherever I am acquiring my gold mines, I am building my you know campus towns over there. तो वहाँ लोग खाना खा रहे होंगे, एग्रीकल्चर हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा. एंड गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग कैसे होगी भाई? कि people would love to come in my campus towns, which is a gold and diamond mine, and they will be actually using the natural way of you know hunting for the gold and diamond also. That will be one of the hobbies. And when they search something and take it out, then we'll buy it from them and process it you know as a finished product. तो ये वाला मॉडल जो हमारा है ना, which is really innovative in a way, and people feel very much at home. Yeah, this is it. And then you know, because of our as you know gold and diamond mining you know expertise, and then Chief Usti of this you know state of SC and RFP just loved the idea of this pure gold coin as a digital currency, because every other digital currency has always came into trouble. You know, Zuckerberg tried it, and you know the banks always closed them down, you know, somehow or the other. So you know that is a very you know big mafia. But now all the central banks also, all the banks you know are thinking about going digital anyways, because they don't believe that ये you know paper currency का कोई दौर चलेगा अब, ठीक है ना? It's ending. It looks like that way. Yeah. So now what we are saying is that you know I don't want to get into the mess of currencies. I simply say, okay, my buyer is a central bank, because every central bank has to have a reserve of gold to print the you know money they are printing. Okay, so they are always my buyer of the gold, and the biggest buyer I have now is Chief Usti, you know, of the state of SC and RFP. And he says, as much quantity of gold as you have, Mufaddal, I am the buyer. And then you know I said, well, and I said, okay, I can supply you that. So he says, my terms are Islamic. I said, that's great. I buy cash on delivery. No banks. I don't like banks. I don't like insurance companies. So I asked him, this is what you are, you know, I mean, I love you now. You know, I want to hug you. You know, so I've got a blanket order of this, you know, as much gold as I can supply. And he can pick up the gold from me from Karachi. If I can give him 200 metric tons in Karachi, he's going to just pay cash and pick it up. No hassle. I don't have to worry about it. He has got his own aircrafts. He has got his own people, because it's a state, right? I mean, and the state is buying, I'm selling it to the state, and, you know, and I normally sell it to all the central banks anyways. So I'm selling my gold now exclusively to the state of SC and RFP. He is my biggest buyer. And then he's interested in buying all the sinking islands, all the ghost areas where people don't live. So he says, well, Mufaddal, I can go there. We can set up a diplomatic enclave over there.
and then all the people who are homeless, they can come and live over there. We build your campus towns, you know. Okay. This is a fantastic model which has been developed. And this is a great asset for us to really re-engineer Pakistan, because, you know, we need, you know, economic vibrancy. We want to set up the, you know, the Madina Hukumat. And the primary prerequisite of Madina Hukumat is, you know, simple. You know, State Bank has to become a gold bank. And nobody can stop us from doing it, you know, because everybody is going towards that trend anyways. So we have to take that initiative, and we can simply say, okay, fine. I can bring in so many $1 billion, you know, into the country as a foreign direct investment to really do all kinds of manufacturing of the raw materials which exist in Pakistan. So we will not export any raw material. You know, all the raw materials will be consumed by us, and we will only be exporting, if we need to export anything, will be finished product to the world. So the best, you know, technologies, the best, you know, kind of brains which people have everywhere in the world, because we give them the best incentives, right? So they will all come to Pakistan. Okay, and now Pakistan is, you know, a beautiful country. You know, we can offer them so many things in Pakistan which no other country can offer. Basically, you know, from the highest mountains to, you know, the ocean and islands, and I mean, such a beautiful country, you know. So this is the plan now that, you know, we want to really integrate the wisdom. And I think based on your, I mean, this auto industry itself, and now you mentioned all the other related industry, and TPS, Toyota Production System, like say, okay, 2.5 minutes, you know, Corolla rolls out, you know, and but that's because, you know, so many other industries are supporting it just in time. Whatever components they need, they just in time, you know, components are you know, arriving, and vehicles are, you know, rolling out. So now what I want to discuss, you know, with you is this, that, okay, new cars, obviously this hybrid cars, hydrogen, you know, fuel cell, as well as electric hybrid will be produced. We want to produce it, okay, in Pakistan. But currently what I'm looking at is that all the other cars which are existing in Karachi or in Pakistan, we simply say that, okay, one car can support 3 families as is. Okay, if it's whatever fuel they are consuming, that's fine. We can sign a contract with Nigeria and Pakistan, and I can supply all the Bonny Light crude oil. You know, Pakistan can exclusively buy all of it, and, you know, it will be just one country supplying it to the other to currently satisfy the fuel requirement of a conventional fuel, right? So that is one way of, you know, becoming self-sustaining in a way. And then, you know, we can convert all these existing cars into this hybrid electric, okay, conversion basically. And then we say, okay, these cars will not be parked anywhere. So all the parking space which is out there in Pakistan becomes a useful space. Why? Because the car doesn't need to be parked. It has to be on the road 24 hours a day. And meaning 24 hours a day means that 3 families will be supported. 8-hour shift. You know? Explain me कि आप जब कह रहे हैं कि family will be supported. What do you mean, so that I can understand? Well, today we know that, you know, companies like Uber is sort of, you know, squeezing the blood out of our people, you know, or all multinationals in a way, you know, they do that, right? I mean, I am part of the multinationals, so I know that, you know, what they do with people like us, you know. So now what we are looking at is this, that we set up a system, okay, the technology exists, I mean, and the technology Uber can be sort of improved upon. So we simply say that, okay, the best, most of the profits, you know, which comes out will go to the people who are owning the car and driving the car. So that means 3 drivers on a 8-hour shift will be driving the car, okay, and, you know, serving the residents of whatever city, village, you know, country. And I mean, it will be a fantastic, clean car, you know, fuel efficient car, zero maintenance type of a vehicle, because electric, you know, hydrogen hybrid doesn't require that much maintenance, right? So we actually was thinking about converting the current vehicles
utilizing the batteries and, fuel cells which are out there. So we actually use all the engineers to, convert the vehicles, and then the vehicles can then, provide better income to the owner of the vehicle as well as to 3 other families. So that is a model I was thinking, and I was talking to, I think, one of the companies in China who makes batteries. And I said, okay, the Tesla battery is being produced by Panasonic. Can you produce the same battery at half the cost? Yeah. And then I said, why not? Why not? Why not? We can do that. So, they are excited about it. And I said, well, I give you the volume. All the cars in Karachi and Mumbai will be converted, into electric. Just produce that same battery, which is better than Tesla, which Panasonic is producing now, So can you do that for me? So, if we have a volume, suppliers will be there, and, we can develop it ourselves. And, like all the current manufacturing plants in Korea or wherever, it will come to Pakistan because the volume is there. All of a sudden, Tesla became $1 trillion company. Why? Because Hertz gave them the order that all the Hertz car will be Tesla car. In a jiffy, it became $1 trillion company because so big an order came. Yeah. Right? So this is what we are after, that we want to do everything in a very self-sustaining manner. And I'm not against any technology, provider. I love Elon Musk. Why? Because he was fortunate that he didn't got a job. I was unfortunate. That all these multinationals, captured me, and I spent my prime time with them, So that was sort of, but I consider him that because, he was a person, he's an engineer, he's a down to the earth kind of a person. Okay. And innovator. And, it's good to have him in our, in our team. We all can same model, we offer them better profits, less efforts. Okay. He's a person who puts 18 hours a day still. So, have you discussed with any of the proposals with Tesla guys? Well, what we are doing now is this, that, okay, at the end of the day, the first one, what we want to do is that I work with Energym University, and I said that these are all our plans, because we are after all the STEM graduates, okay, enrolling all the STEM graduates of the world to join Global Executive MBA in our Climate Smart Entrepreneurship Program. So we have the, skills available with us, people who can really run the industry. We are training them. Okay, and then at the end of the day, those same people will be co-owning all these facilities also at the same time. So they will not be sort of employees, they will be actually partners. So everybody, works like associates, gives their best. And because everybody would love that, okay, I don't want to be millionaire in 53 months. I want to do it in 500 days, why not even 1,000 days. So I'm not stopping anybody. Go and, give your best effort, and we'll finance any ideas you have. So we don't have any dearth of, finance, simply because you look at the calculations, okay? 2% of all the gold transactions, okay? Billions of dollars, trillions of dollars worth of gold, which I will be selling, today to the central banks or to Chief Usti, I am dedicating 2% for these projects to support, to finance all these bright ideas. Okay. So that way we don't have any issues in terms of where the money is going to come from. Money is there. Right. And one simple calculation, like I said, I gave you the model, right? $5,000 or 53 PGC now, or $7,200 into 2 billion. How many Muslims are there? 2 billion. Yeah. That's a potential amount of money out there which needs to be tapped in. Why? Because nobody offers Hajj with income. We will be the first one doing it. I'm the first one doing it. We will give you the total quality Hajj service. We will set up our campus town also in Makkah Muazzama and Madinatul Munawwara. So enjoy the royal treatment.
as a TQL club member, and you are also making money at the same time. Okay. So with that model in our camp, and when the money is secured in State Bank of Pakistan, security is there. Nobody will question it, that somebody can run away with their money. So, it will be 100% guaranteed kind of a program, which is supported by, Energym University. And then, we are putting all the thing in our e-wallets, it will be available in a safe and secure way of doing all the transactions, etc. Current best technologies will be utilized. So we are actually securing everything for them and giving them knowledge, giving them education, and I'm actually supporting family life. That's the biggest blessing there, that all the social issues will get resolved, because our young generation will not have time for doing any nonsense, because they say, okay, man, when I need, I'm of the age of having a life partner, I have a life partner. So now, husband and wife works together as a team. Bilkul, bilkul. And builds the house and lives in that house and stuff like that. So definitely, we can, idea is very simple. All the engineers of Pakistan Engineering Council, all the engineers I'm simply talking about, when we make these diplomatic enclaves of this SCNRFP will employ everybody. Everybody will be engaged. Why? Because if they don't have 5,300 PGC to join Gemba program, they will get the Kardanasna, from that fund. So that means everybody gets engaged in our program. They get trained in everywhere in the world. For instance, the current 3 centers we have decided. I have selected a dairy farm in Texas, close to Dallas. I've been talking about that because I signed a contract with Energym University a long time ago. And, currently the largest farm in Karachi is Sind Dairy Farm, owned by Mr. Jamil Memon. So I had already signed a contract with him, and he said, well, these people will not come to Karachi for them. Although I can give you my, all the dung you need, to convert it to whatever you want to do. Because it's an expense for me now, I'm not going to give you the milk, I'm going to give you the dung. Okay, we signed the contract. So he gives me the dung for 210,000 heads of animal, which he has, and we signed a contract with Energym, and he was right. Because of the, constraints and security concerns and this and that, Energym was not able to come to Karachi. And then we decided with Professor Sasinski, yes, Karachi and Texas is very same in weather. Okay, so we select a dairy farm in Texas and train all the, Karachites over there. So that was developed, 4 or 5 years ago. And now we are talking about really getting the same site, which is still available. It was 1.7 million then, now it is $2 million. 163-acre site, okay, in Dallas, Texas. Then we have another inventor is sitting in Vietnam, Professor Paul Olivier, and there are a lot of beautiful coffee farms, and Dalat is a very beautiful place in Vietnam. So he wants to build one campus over there, in the coffee farms of Dalat. So that will be another experience which people will be having. And Dubai, we know, is like United Nations, people from all, countries are there in Dubai. So Dubai is one other, in Dubai South, I think, which is being developed by Sheikh Mohammed. We can get a site from him and convince him to really make it into a diplomatic enclave, if possible, and bring in the, foreign direct investment, because they also need it now because of the oil situation and stuff like that. So these are the 3 sites we have selected to train everybody. And then after they are trained in these 3 sites, then they can go back to their destinations and, duplicate that model. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. तो अब हमें बताइए कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए. अब आप ये कि अपना ईमेल मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है? जी जी. और अलोंग विद योर प्रोफाइल, ठीक है? जी. मेरा drmufaddal53@gmail.com है ये आपके पास, ठीक है ना? जी जी. तो वो आप अपना भेज दीजिएगा, तो मैं फिर आपको जो है ना ये पूरा जो इनका जो मैंने आपकी ईमेल एड्रेस मेरे पास नहीं है. DR डॉक्टर आप मुझे उस पे फेसबुक पे प्लीज भेज दूंगा, फेसबुक पे भेज दूंगा मैं. जी, अपना कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह भी भेज दीजिए. मैं कांटेक्ट नंबर आपको भेज दूंगा वहां पे, तो वहां पे ईमेल और कांटेक्ट नंबर दोनों आ जाएंगे, तो व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगे हम,
और यहाँ पे भी आ जाएंगे, तो दैट वे देन आई विल ईमेल यू ऑल द डिटेल्स कि भाई दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू. And then I'm working also with another gentleman, engineer server, who has got about 400 plus acres, very very close to Zabist, the campus in the Dhabeji Wind corridor. Zabist किस जगह पर है Zabist? Zabist जो है ना अपना ये धाबीजी विंड कॉरिडोर शुरू होता है ना, पूरा जो Zabist का एक बहुत बड़ा कैंपस है, जो पानी से भी हम जा सकते हैं और सड़क से भी जा सकते हैं. तो इट इज नोन एज सीपेक का ही एरिया है, कराची से अबाउट 1 hour अवे. धाबेजी विंड कॉरिडोर कहलाता है. धाबेजी जी बिल्कुल, जो नया इंडस्ट्रियल स्टेट जो बन रहा है, जो पूरा बन रहा है वहां पे, ठीक है ना. तो वहां पे इनके पास जो है ना ये विंड वगैरह, विंड टर्बाइन्स वगैरह पे काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे, इंजीनियर सर्वर. सो इन्होंने जो है ना ये बहुत सारी जगह बाई की है वहां पे. तो ही ओन्स लॉट ऑफ लैंड ओवर देयर. तो हमने उनको भी सजेस्ट किया है कि भाई अगर तुम अपना क्लाउड इस्तेमाल करके अगर ये हमारा डिप्लोमेटिक एनक्लेव बना लेते हो ना, तो चीफ उसकी को हम पाकिस्तान बुला लेते हैं भाई. उनसे कहते हैं कि यार 200 मेट्रिक टन का पहला ऑर्डर कराची से उठाओ तुम, ठीक है, और फिर ये जगह जो है ना उनको बेच देंगे हम. तो दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम द डिप्लोमेटिक एनक्लेव. तो इस तरह की प्लानिंग जो है ना वो डुएबल है और पॉसिबल है. तो उनका वो भी मैं आपको भेज दूंगा, उनकी जो प्रेजेंटेशन है छोटी सी, जो उनकी साइट डिटेल्स है, तो वो भी हम देख सकते हैं. और वो फिर एज ए टीम हम जो है ना डिसाइड कर लेंगे कि विच साइट इज द बेस्ट वन फॉर अस, एंड मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली. जी जी. और इसके अलावा कुछ ये है कि मैंने आपसे डिस्कस ये करनी थी कि जो क्योंकि हमने भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से बात की, उन्होंने हमें अपने पोर्टल में चाइनीज के लिए कुछ प्रपोजल के लिए कहा था कि उनके प्रपोजल और फिजिबिलिटी स्टडीज वगैरह जो हैं वो आप उसको पब्लिश करें. तो हमने उनको पब्लिश किए हैं, तो वो भी मैं आपको भेज देता हूँ कि हमने उनके लिए क्या पब्लिश किए. वो आप भी पढ़ सकते हैं. उससे यह कि आपको हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा, और हमारा 5 साल का जो विजन है उसके बारे में पता चलेगा कि उसमें 5 साल में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मार्केट कैसे चेंज होगी. तो वो भी आप प्लीज. और दूसरा ये कि जो हमने रीसेंट प्रेजेंटेशन दी है सीपैक को, जो ट्यूसडे की प्रेजेंटेशन थी, उसका मटेरियल भी जो है वो उसकी एक वीडियो है, वो भी आपको भेज देंगे. ठीक है, और ताकि यह है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारा भी समझ आ जाए. विजन हमारा बिल्कुल आपके साथ अलाइन कर रहा है, और हम जो चाहते हैं वो आप पहले से सोच चुके हैं. तो इंशाल्लाह ये है कि वी जस्ट नीड टू वर्क टुवर्ड्स इंशाल्लाह स्लोली, और उसमें केयरफुली, इसको कहते हैं कैलकुलेटेड स्टेप्स लेकर. ये अभी थोड़ा सा मेरा मतलब है कि लोग जब ये कोई भी इंजीनियर जिससे मैं बात करता हूँ ना, so they are used to the very conventional way of, for instance, I said, okay, in Procter & Gamble world, when you launch a product, it takes about 3.5 years to do it. One product launch, right? From the inception to the market, तो मैंने कहा पाकिस्तान की टीम को उन्होंने मिरेकल टीम कहा था कि because we in 1 year meeting all the P&G standards launched 3 products. बिल्कुल. वो हमें कहते थे कि यार these are miracle people, मतलब ये पता नहीं कैसे काम करते हैं, बिल्कुल ये है बीट करते हुए. Absolutely, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि this is what we are after, that we really don't want to use the conventional way. We challenge everything which was conventional. We say, okay, now if there is, then this is a simple situation. Okay, why we are saying this that okay, how much does it take to complete a construction project generally? कम्युनिटी बनानी है, ये बनानी है, तो वो 2-3 साल का लग ही जाता है पीरियड ना. तो मैं सिंपली उनसे ये कह रहा हूँ कि भाई आज ही टेक्नोलॉजी मौजूद है हमारे पास 1000 मकानात बनाने की 1 दिन के अंदर. तो when I can provide you that kind of a technology, and I can even better it utilizing all these 3D printers and the IoTs and all the current technologies out there, जो कि current technologies है वो तो available है. लेकिन हमारा फायदा क्या है? With 50,000 plus engineers working for me, I'm going to be reinventing that. नई बन जाएगी वो, तो हमारी टेक्नोलॉजी बन जाएगी, और वो कहेंगे नहीं यार 1000 तो पुरानी कहानी हो गई, अब तो 2000 मकान दिन के बनने चाहिए. ठीक है ना. तो वी वांट टू रियली डू दैट काइंड ऑफ स्टफ इस फ्रीडम के साथ कि भाई हम कहें ना कि भाई स्लो स्टेप्स लेने में लोगों को ये होता है कि भाई आप गिरो नहीं, नुकसान ना हो, ये सारे मामला की बात होती है. लेकिन आई एम लुकिंग आफ्टर दिस कि यार 1 minute लॉस्ट
with all the opportunities जो आपने describe किए, how much does it cost? So shall we lose that minute? We should not. Yes. Yeah. No, we shouldn't. We shouldn't. That minute is gone, is gone, is gone. You know, आज करो ना भाई, जो कर सकते हो आज करो, agility के साथ करो. हम ये नहीं कहते कि भाई पागलों जैसा रिस्क नहीं लेना हमें, ठीक है? You know, but get as an engineer, we can always take very very calculated risks. But then I can simply you know, quote one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you know, and that hadith is simply this कि दो है भाई, दो कंपनीज हैं, सिमिलर कैपेबिलिटीज हैं, एक फ्लाई कर रही है, एक रेंग रही है. क्या फर्क है? फर्क सिंपली ये है कि जो जसारत से काम करता है ना, the person who is bold will always fly. Subhanallah. Yeah. So you have to be bold. Yeah. You know, and you don't have to worry about why. And the boldness comes, कैसे आती है boldness? कैसे आती है? बड़ी सिंपल है ना. बोल्डनेस कैसे आती है कि भाई अगर हमने मदद रसूलुल्लाह से मांगी है, ठीक है ना, जो भी काम में करता हूँ, ठीक है ना, मदद किससे मांगता हूँ? रसूलुल्लाह से मदद मांगते हैं. अब हमारा तो यकीन ये है ना भाई कि रसूलुल्लाह शफात कब करेंगे? जब जिंदा है. तो मैं तो कहता हूँ कि रसूलुल्लाह अभी देख रहे हैं कि भाई ये मैं अभी सबूर मुगल के साथ ये मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, तो हो रहा है. और ये लोग ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान में मदीना की हुकूमत बनाने के लिए. तो वो मदद आती है. And this is a kind of a spiritual help when you get, then you don't worry about losing. उनके कंट्रोल तो सब रसूलुल्लाह साहब के पास है ना, रहमतुल्लिल आलमीन है भाई. जब सूरज को वो चला सकते हैं तो सोलर टेक्नोलॉजीज तो हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए ना भाई. बिल्कुल. बस मैं सिर्फ हिकमत के बारे में कह रहा था कि जो भी काम करें उसमें हिकमत के साथ स्टेप्स लें, के साथ करें और हिकमत के साथ, ठीक है. हिकमत के साथ तो सबसे बड़ी बात कैलकुलेटेड स्टेप्स होते हैं. हाँ, सबसे, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वही आपने कहा. सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई ये माइंडसेट जो है ना लोगों का, वो सिर्फ मैं थोड़ा सा चेंज करने चाहता हूँ कि देखो भाई, एज एन इंजीनियर, इफ आई वर्क ऑन से मेकिंग यू नो स्मॉल डेयरी फार्म, मिसाल देता हूँ भाई, $1 मिलियन की इंडस्ट्री है. कितनी है? पर डे का प्रॉफिट है मेरा दूध के काम में. कितना प्रॉफिट है? $1 मिलियन अ डे. एंड टुडे वो सारा 10 मिलियन लीटर्स ऑफ दूध जो बिक रहा है ना, उससे कैंसर होता है बिकॉज ऑफ ऑल द कंटामिनेशन. तो अब ये इंडस्ट्री है ना पूरी. अब लोग कहते हैं कि यार तेरा मॉडल दिखाने के लिए यू स्टार्ट स्मॉल. तो मैंने वो किया. क्यों किया? क्योंकि पहले तो ऐसा बना ही नहीं था ना. तो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया और प्रूव किया कि भाई ये पाक एंड फ्रेश मिल्क जो सारी कंटामिनेशन से पाक है, ये फलाने डेयरी फार्मर ने मेरे लिए बनाया है. उन्होंने मेरी बात मानी, जानवर अलग किए, मेरे सिस्टम को फॉलो किया, और फिर उन्होंने आके कहा कि भाई ये डॉक्टर साहब ने जो बताया था ना, उसके तरीके से करने से मेरे जानवर भी बड़े खुश हैं, हेल्दी है, और ये इस तरह का दूध मिल सकता है आपको. तो दैट वाज द प्रूविंग पॉइंट कि भाई अब ये हमने प्रूव कर दिया कि कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये डुएबल है. ठीक है ना. अच्छा, अब हमारा सिलसिला क्या है कि भाई अगर इंडस्ट्री आपकी इतनी बड़ी है, मिलियन जानवरों को आपको टेम करना और ट्रीट करना है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. I want to build this Wheel of Life farm schools everywhere in 1,000 campuses of university campuses, and then all those animals will be enjoying a royal life and giving you milk which royalty would love to consume. बिल्कुल, ये पॉइंट है. तो पॉइंट क्या है कि प्रूफ करने की बात होती है, वो कर दिया आपने. अब प्रूफ करने के बाद जो है ना, अब आप कहेंगे यार मैं रेंगते कर रहा हूँ काम. नहीं, I don't want to do it भाई. I want to do something which can be done with agility, which can be done very fast, which is not sequential processing but parallel processing. ठीक है ना. और वो parallel processing आजकल IoT ने और जितनी भी टेक्नोलॉजीज मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की और जो चीजें अवेलेबल है आज, agility आ चुकी है उसमें. तो what I'm interested in doing is this, that the most expensive technology which is out there, I am interested in that technology and I want to demonstrate that technology in my campus town. Because सारी टेक्नोलॉजी ओनर्स को जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जगह चाहिए.
So I'm saying, okay, सही no problems, no issues. University जी। campus town, you come and demonstrate the technology, I'll give you the space. कराची में किस जगह पे आपकी फैसिलिटी है जो यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर रहे हैं जो आप? एक तो देखिए हमारे पास जो है ना, अभी आई हैव गॉट, जो मेरा प्लान किया हुआ है वो ये है कि बिसाइड्स दिस धाबेजी साइट्स जिसपे मैंने काम शुरू किया, ठीक है ना, जी 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 500 एकड़ के करीब साइट थी, वो मैं भेजूंगा आपको डिटेल, जो इन्होंने ही दी थी। लेकिन 500 एकड़ की साइट के ऊपर सिलसिला क्या था कि उस वक्त मुझे सिर्फ $12 मिलियन चाहिए थे उस साइट को लेके कैंपस बनाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ उस वक्त उस तरह का बिजनेस प्लान जो है ना, हमारी कम्युनिटी में कर्दन हंसना के लिए किसी ने दिया नहीं था। अच्छा यार $12 मिलियन भाई, ये तो 12, हम तो सोना लेंगे, हम ये लेंगे, ये सब कुछ। मैंने कहा मैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा, सोना भी रखवाऊंगा एज अ कोलेटरल, सब कुछ, लेकिन मुझे बैंक से पैसे नहीं लेने, मुझे तो कर्दन हंसना लेके काम करना है। तो $12 मिलियन का जब प्रपोजल हमने दिया तो वहां से फिर ये तिजारतुल राबिया का डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ। फिर उन्होंने एक प्रपोजल बनाया जिसपे हम आज काम कर रहे हैं कि भाई सारे लोगों को अगर उम्रा भी करना है, हज भी करनी है, तो भाई उनको उम्रा और हज तू करवा दे, ठीक है ना, तू गारंटर बन जा, पैसे हम उनको देंगे, उनसे तू ले ले, तो तेरे पास सारे पैसे आ गए ना जो तुझे चाहिए। बिल्कुल सही, तो इस तरीके से ये पूरा प्लान बना, और उसी प्लान बनने से फायदा होता है। तो आई लव व्हेन पीपल से नो टू मी। जब लोग ना कहते हैं ना, तो फिर आपको इनोवेशन का तरीका पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ से ना हुई तो अब इसका आगे तरीका क्या है, what is a new thing which we have to think about, to really do it. I want to do it, करना तो है, ठीक है ना। तो ये अप्रोच के साथ जब आप चलते हो ना, तो पेशेंस चाहिए होता है, सब्र की बहुत जरूरत होती है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, my wife and my daughter who is also the Hafizul Quran, they both supported me. And now alhamdulillah the new year gift हमें ये मिला है इस दफा का कि भाई I am also a grandfather now, because हमारा नवासा जो है ना वो पैदा हुआ है अभी, तो 7 days old। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह our family is sort of in a way self-sustaining, और हमें शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट तरीके से इंजीनियरिंग कैसे करनी चाहिए, और हमारी वाइफ मेडिकल डॉक्टर है तो उनको मेडिकल प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए वो हमारी बेटी सिखाती है। इंटरेस्टिंग, ओके। जी, मेरी बेटी भी मेडिसिन पढ़ रही है 4th ईयर में, और मेरे बेटा हिफ्ज कर रहा है कुरान, तकरीबन उसने 12 सिपारे कर लिए हैं। 12 कर लिए, और he is now a qualified doctor as well। इस साल उसने मेडिसिन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारी छोटी सी फैमिली है। आपके दोनों बच्चों के लिए प्रोजेक्ट ये है भाई कि एक बेंचमार्क किस्म का हॉस्पिटल जो है, जो मुंबई में खड़ा है, इसे कहते हैं सैफी हॉस्पिटल मुंबई, ठीक है ना, बेंचमार्क हॉस्पिटल है, मतलब ऐसा लैंडमार्क ऑफ मुंबई। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी ये कैंपस टाउन्स के अंदर जो है ना, इस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज भी हो, कि हमारी ये वीलो सैम जिलोला फार्म स्कूल के अंदर भी हेल्थ सेंटर इज प्राइमरी, कि भाई सारी चीजें जो एक कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो पूरी हो जाए एक ही जगह पे। एनीवे वो सारा प्लान जब आपसे डिस्कस करेंगे, और हम चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे जो है ना वो आए, और देयर माइंडसेट शुड नॉट बी टू गेट अ गुड जॉब, इसको हमें खत्म करना है, इस माइंडसेट को। तो when I'm talking about re-engineering the education, what I will do is, Sabur Sahab, I'll invite you and I'll share the details which I have discussed with Professor Susinski and my team. हमने एक जो है ना 5 दिन की, कल संडे को एक हमारी मीटिंग होगी उनके साथ, दोबारा फाइनल मीटिंग, उसमें शायद मैं आपको इनवाइट कर लूँ कि भाई आएंगे और ये हमारे जो है ना ये एक रोल प्ले करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग द आइडियाज ऑफ हाउ टू रियली री इंजीनियर आवर प्लैनेट, ठीक है ना। तो हम आपको इनविटेशन देंगे, तो वो मैंने 5 घंटे, 1 घंटा रखा है एवरी डे, स्टार्टिंग मंडे टू 31st, देन न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करो, इनका क्रिसमस हो जाएगा ना, तो मंडे से ये हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने कहा था कि यार ये 5 घंटे जो है ना वो एक स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाए फॉर एवरीवन टू सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। तो वो उनके लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, और वो हम कहें कि सारे लोग मेंबर बनेंगे, तो मेंबर बनने के सारे फायदे जो सैम्स क्लब ऑफर कर रहा है ना यूएसए के अंदर, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, उससे बेहतर मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यू विल बी एबल टू परचेज गोल्ड एट LBMA -2%।
So all your cash assets जो भी है, personal, family, वो cash asset जो है ना वो फौरन आपके enhance हो जाएंगे 5%, which is the biggest benefit of becoming Sam's T12 club member. बस ये Sam's is एक तो Sam's Walton है, लेकिन हमारे सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन का एब्रिविएशन भी जो है ना वो भी Sam's बनता है, ठीक है ना। तो वो दोनों मिक्स अच्छा हो गया हमारे लिए ना। तो मैंने कहा चलो भाई हमने Sam's आगे लगा दिया, TQL इज माय कंपनी, टोटल क्वालिटी लाइफ मेंटेनेंस एसोसिएशन को एसोसिएट बना दिया, प्रोप्राइटरशिप से शुरू भी थी। अब ये कि now we are talking about Sam's TQL Global as a global group company which we are incorporating in the state of SC and RFP to enjoy and provide the best incentives to everybody. Right. ये development है, from start to now. तो आप कराची में कब से रह रहे हैं कराची में? और कराची में मतलब right from start, I got my schooling from St. Paul's. फिर हमने JB सिद्धवा साहब होते थे, तो वो DJ was a famous college, high school college. तो उस वक्त JB सिद्धवा जो थे उन्होंने शिप ऑनर्स कॉलेज बनाई है नॉर्थ में, हैदरी में। अच्छा। I was the first, हमने पहला बैच ज्वाइन किया था शिप ऑनर्स कॉलेज का। So I got my high school done from Ship Honors College. फिर दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिर thanks to our Zulfikar Ali Bhutto, that we lost half of the Pakistan and 2 years of my life was also gone because of the turmoil. So 76 का बैच जो है वो 78 में ग्रेजुएट किया हमने। फिर then I got my masters from Wayne State University in chemical engineering, diversified into food science from University of Illinois Urbana-Champaign, PhD वहाँ से कर ली। और फिर पोस्ट डॉक्टरल वर्क नोवा स्कोशिया कनाडा में किया। और ये सारी चीजें पता है कितने पैसे में हासिल हुई? सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या था कि सैयदना साहब वाज इन कराची जब मैंने इंजीनियरिंग खत्म की थी ना, तो मैंने कहा कि अब गॉट वेरी गुड जॉब्स आल्सो अवेलेबल, रिफाइनरी वगैरह में हमारे पास है, तो मैं जॉब करूं कि पढ़ने जाऊं। तो सैयदना साहब ने कंधे पे हाथ रखा और कहा, इनके वालिद जो है सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन के जो वालिद है ना सैयदना बुरहानुद्दीन साहब, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, उसने कैप्चर द वर्ल्ड, डोंट लूज योर आइडेंटिटी। क्या मशवरा दिया? दुनिया पे कब्जा करो, जाओ पढ़ने, दुनिया पे कब्जा करो, लेकिन अपना ये नहीं बोलना, लूज मत करो। सिर्फ वो छोटे से जुमले ने जो है ना ये मैजिक कर दिया सारा। मतलब एक तो उनकी दुआ थी, तो उनकी दुआ से जो है ना एडमिशन्स वगैरह हो गए, सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी। आई गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम ऑल द वे टू PhD तक, स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिल गई, सब कुछ। आई वाज वेरी हैप्पी, यार सारी चीजें हो गई। लेकिन जब मैं चेक लेने गया ना नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, तो उसमें वो कुछ लिखे हुए थे, सर्विस चार्जेस वगैरह लिखे हुए थे। एक्साइटमेंट में वैसे जनरली तो आप साइन करके चेक ले लेते हो ना, तो मैंने नहीं लिया चेक। तो मैंने कहा यार ये मैं जरा पढ़ने दो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे, बिकॉज़ आई एम साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड आई शुड रीड द कॉन्ट्रैक्ट, तो गिव मी द कॉन्ट्रैक्ट एंड आई विल कलेक्ट द चेक टुमारो। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट लेके मैं आया यहाँ पे, हमारे जो दोस्त थे कम्युनिटी के अंदर लिए हमारे, उनको मैंने दिखाया। तो उसने कहा भाई मुझे क्यों दिखा रहा है, वो सैयदना साहब के बेटे ही बुरहानी महल में मौजूद है, उनको दिखा दे। क्या वहाँ पे उनको दिखाया, उसने 2 टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिया कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, दैट मीन्स कि भाई वो सही नहीं है हमारे लिए पैसे लेना, वो रिबा है उसमें, ठीक है ना। वो सर्विस चार्जेस रिबा के जिम्मे आ गए। तो वहां पे उसे फिर उन्होंने पूछा कितने पैसे चाहिए भाई डिट्रॉइट जाने के लिए। मैंने कहा 5200 रुपये चाहिए। दैट वाज अ शॉर्टफॉल आई हैड टिकट बाय करने के लिए। अच्छा, 5200 का वो चेक काट दिया मैं। उसने कहा लो भाई 5200 आपके सैयदना ताहिर सैफुद्दीन ट्रस्ट से हमारी तरफ से, जाओ पढ़ो। तो मैं खुश हो के भाई मैंने कहा चलो भाई लिया, और आई वाज ऑन माय वे। फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया कि यार डेट्रॉइट पहुंच के खाना वाना भी खाएगा कि नहीं खाएगा। तो आई गॉट अनदर $25,000 कर्दन हसना। तो ये आपको बता रहा हूँ कि कर्दन हसना की बरकत इतनी हुई कि भाई डे 1 से जो है ना आई वाज अर्निंग डेट्रॉइट लैंड होने के बाद। तो मैंने मेरी टोटल जो करियर है ना, राइट फ्रॉम मास्टर्स PhD सब कुछ जो है ना 5200 रुपए में किया। सुभान अल्लाह।
तो ये एक मतलब है कि हम कहते हैं कि यार ये वाली जो होती है ना कि व्हेन यू अप्लाई योर दीन टू दुनिया, देन यू नो देन नोबडी स्टॉप्स यू। इतना पावरफुल है हमारा दीन, ठीक है ना। कोई शक नहीं। तो हमें सिर्फ उसको अप्लाई करना है। और सबसे बड़ा फायदा क्या, वो आइडेंटिटी मेंटेन करने का, कि भाई नोबडी वाज डिस्ट्रैक्टिंग मी। और एक लोगों को ये पता था कि भाई इनको डिस्ट्रैक्ट करने में हमें खतरा है जानवान का, क्या मैं मार्शल आर्टिस्ट ऑल्सो ना। तो वो उनको अच्छा। पता था कि भाई ये मार्शल आर्टिस्ट भी है, तो इसका मूड खराब हुआ तो जो है ना हम मुश्किल में आ जाएंगे। नुकसान है, नुकसान है। तो एनीवेज, तो ये हम चाहते हैं कि ये अब हम ये चाहते हैं कि हमारे नवासे को भी हम हमारे हमसे बेहतर बनाए, ठीक है ना। और ये मिशन अगर हम पूरा कर दें ना, कि हम अपने जैसा एक क्रिएट कर देना, तो द जर्नी कंटिन्यूस आफ्टर दैट। बिल्कुल। दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला बस अब मिलजुल के, आई वाज रियली मतलब एक्साइटेड अबाउट लुकिंग एट योर प्रोफाइल, एंड इस पे हम काम कर ही रहे थे कि भाई हाउ कैन वी रियली मेक आवर सिटी क्लीन। और कराची इज अ ह्यूज चैलेंज ना, बहुत सारे इश्यूज हैं कराची के अंदर, तो हमें उसको बिल्कुल सही रिजॉल्व है। करना है। जी जी। और दूसरा ये था कि कुछ हमारे साथ अभी रिसेंटली एक कराची में एक बाइक बाइक के पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हाँ, तो उनसे हमारी अप्रोच हुई थी कि वो उन्होंने बस बेसिकली ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि उनका भी यही प्रॉब्लम है कि बाइक्स जो हैं वो बहुत पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। कर रही है। तो उन्होंने चाइनीज़ कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनीज को कि उनकी इनिशियली सीकेडी किट्स, सीकेडी का मतलब ये है कि उनकी उनके पार्ट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर असेंबल करें, ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगले 2-3 साल में वो लोकलाइज करें कराची के अंदर। ठीक है। तो उनसे हमारी बात चल रही है कि हम उनके साथ किस तरीके से कोलैबोरेट करें, क्योंकि हम सब सब जब तक हम जितने ज़्यादा मिलके चलेंगे तो उतना ज़्यादा हमारे लिए उतना बेहतर है। तो जब उनकी थोड़ी सी डिस्कशन मेच्योर होगी तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा कि वो क्या चाह रहे हैं। ठीक। बेसिकली ये है कि मुझे 2-3 कराची की कंपनीज ने अप्रोच किए थे। वो कह रहे थे कि अगर आप 50,000 का बाइक बनाएं पाकिस्तान के अंदर, तो मैं आपसे आपसे बाइक्स जो है ना, हम अपनी कंपनी की बाइक्स जितनी हैं तकरीबन उनके पास कंपनी में तकरीबन 10,000 बाइक्स अच्छा, रोजाना वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए। काम तो वो कह करने रहे के थे कि लिए। हम सबको इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट कर देंगे अगर ठीक, आप 50,000 की बाइक बनाएं। ठीक, तो मैंने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आपने मुझे चैलेंज दिया है, लेकिन ये चैलेंज मैं अकेला नहीं कर सकता, हमें मिल के करना है और हम ठीक। और लोगों को साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल तो पॉजिटिव। कराची तो इस तरह की चीज़ें बहुत पॉसिबल हैं, मुमकिन हैं। और जो हमारे मुल्क की ज़रूरत है हम उससे स्टार्ट करें कि ये हमारे सामने है। कराची में इतनी इतनी यानी कि गली गली में बाइक्स हैं, है, और पोल्यूशन जो है ना वो क्रिएट हो रही है। वो लाहौर की क्रिएट हो देखिए रहा क्या है। हालत हो गई है, बिल्कुल हो रहा लाहौर है। की क्या हालत हो गई है, पूरी देखिए दुनिया में आप मशहूर ना, हो रहा है। हाँ। देखिए तो कितने लाहौर का भी मसाइल यही है। है। तो इवन ये कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक बाइक लोकलाइज कर लें तो हम्म, हमें 2 व्हील से 4 व्हील में कन्वर्ट करने के लिए कोई इशू नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। कि 4 व्हील का तो मैं पिछले काफ़ी अरसे से कर ही रहा हूँ, हम्म, लेकिन ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हम्म, सप्लायर्स का, ठीक। सप्लाई चेन जो है नहीं है, तो सप्लाई चेन को डेवलप करना हम्म, ये एक अलग चैलेंज है हमारे लिए। ठीक और ये चीज़ मैंने सीखी है तकरीबन पिछले 1.5-2 साल के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर सप्लाई चेन का कितना बड़ा मसला है। है। इसलिए हमें रिलाई करना पड़ता है चाइनीज सप्लायर्स के लिए या फिर हम्म, अदर दूसरे सप्लायर्स के लिए। इवन एक स्मॉल स्ट्रेन गेज जो है, करेक्ट। एक स्ट्रेन गेज जो है वो आप अगर खुद बना सकते हैं, लेकिन हमने कभी ज़रूरत महसूस नहीं की कि नहीं स्ट्रेन की। गेज की भी ज़रूरत है, हम्म, कि वो एक स्मॉल पार्ट है वो हमें शेंजन से मंगाना पड़ रहा है, हम्म, चाइना से। हाँ, सो इस तरह की छोटी छोटी एक स्मॉल इंडस्ट्रीज बन सकती हैं जो 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 सप्लाई करें एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। हम्म। सो इंशाल्लाह ये है कि हमारा हम स्टेप्स ले रहे हैं, और साथ साथ हमारे बहुत सारे लोग, आप जैसे लोग, तो और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि हमारा, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि देखें, हमारे पास 1 मिलियन ITS कार्ड होल्डर है तकरीबन, ठीक है ना, जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। तो हमने ये मतलब एक विजन हम बना सकते हैं कि भाई ईच वन ऑफ देम कैन रियली बी स्टार्टिंग अप that industry which you need to say make this electric bike की बात करें ना अभी हम फिलहाल। जी 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 जी।
कि भाई ये चाहिए, अच्छा, ये सारी 1 चीजें मिलियन चाहिए। ITS, 1 मिलियन ITS कार्ड होल्डर। ITS वो कहते हैं, वो हमारे एक एब्रिविएशन है, एक स्मार्ट कार्ड हमने बनाया हुआ है, वो तारिफ शख्सी अरबी का टर्मिनोलॉजी है, उसे हम जी जी ITS कह लेते हैं। तो हमारे जितने कम्युनिटी मेंबर्स हैं ना, वी आर 1 मिलियन ऑफ देम, द फॉलोअर्स ऑफ सैयदना अली क़िदर मुफद्दल सैफुद्दीन। तो हम ये कहते हैं कि भाई क्योंकि वो उनके लिए रिसोर्स ऑफ करदन हसना, तिजारतुल राबिया, ऑल दैट थिंग इज अवेलेबल ना। और हमने जी 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 हमने भी कहा है कि भाई हम आपको आपके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे, आप सैम्स टीक्वेल में क्लब भी ज्वाइन कर लो तो हम फाइनेंस करेंगे आपके प्रोजेक्ट। तो ये मतलब सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाते हैं ना, तो जी जी बेसिकली की वो सपोर्ट हमें सारा मिल जाएगा कि भाई ये सपोर्ट इंडस्ट्री हमें, मतलब इन प्रोजेक्ट तो हमारा बाइक है एंड इवेंचुअली इलेक्ट्रिक कार्स है, ठीक है ना, कि हमें कराची को बिल्कुल क्लीन कर देना है, नॉइज फ्री कर देना है, ठीक है ना, जी और जी, बिल्कुल साफ सुथरा शहर बना देना है। कराची से शुरू करते हैं, एक एक मॉडल ले बिल्कुल लो। बिल्कुल। तो वो करने के बाद हमारे पास फिर इदारे आ जाएंगे। तो मेरा इंटरेस्ट बड़ा पैशनेट जो इदारा मुझे अच्छा लगता है, जो भैंस कॉलोनी से करीब है, वो वही आपने बताया ना, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री। मैं चाहता हूँ कि वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी है, उसको पहले अडॉप्ट किया जाए। इट्स अ फैंटास्टिक फैसिलिटी टू स्टार्ट एवरीथिंग। ये बड़ी बड़ी है, अपने पाकिस्तान स्टील इज अ ह्यूज वन, वो भी जबरदस्त किस्म की है, लेकिन चीफ उस टी कैन बाय बोथ ऑफ देम, ओके, लेके आ रहे हैं ना, तो मसला ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो I'm रेडी के, क्योंकि मेरे पास पूरा नेटवर्क है चाइनीज सप्लायर्स का, फैंटास्टिक। जो जिनके साथ मैंने बहुत अरसा गुजारा है। और यूरोप के साथ रहने की वजह से यहाँ की जितनी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनीज हैं वो उनका नेटवर्क है मेरे पास। वंडरफुल। तो वो हमें चाहिए कि जहाँ से हम नॉलेज की लैकनेस है हमें, वो नॉलेज हम वहाँ से शॉर्ट टर्म में हम पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र कर लेके आ सकते जाए। हैं, ट्रेनिंग के ज़रिए, हम्म। या फिर या फिर या फिर या फिर कोलैबोरेशन के ज़रिए, आइदर वे, करेक्ट। दोनों तरीके से। और बहुत सारे मेथड्स हैं। और Well, I think we will work with them also, because I think what we want to do is now is this, that okay, all these nonsense of supply chain, जी okay, जी, I consider supply chain now as a nonsense. Why? Because you don't need the supply chain, you have to transform all that into a value chain. Okay, whatever you need, एग्रीड, you produce right there. Instead of या shipping it out from China, it's easier to get the whole plant loaded in one lorry and ship it to Karachi one time. जी जी Then जी जी everything will be produced. And what I'm offering the Chinese industry is this. Okay, जी जी whatever you are making now, I'll give you 10% more. You जी जी enjoy, relax, man. Enjoy 10% more profit. जी। Don't have to worry about doing all the headaches. अच्छा, फजल साहब, मैं सप्लाई चेन के वेस्टर्न मॉडल के बारे में या चाइनीज़ मॉडल के बारे में बता रहा हूँ कि चाइना में शंघाई में जिस वक्त जब ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वहाँ पर जब मूव हुई तो उसकी क्या वजूहत थी। नंबर वन ये कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनको बहुत अच्छे इंसेंटिव्स दिए, Incentives दिए। और उन्होंने 50% जो है वो पार्टनरशिप के लिए कहा। हाँ, यानी कि जो भी उसमें, आप बॉश को देख लें, कॉन्टिनेंटल को देख लें, आप मैग्नेटिक मरेली को देख लें, बोगवानो को देख लें, जो ये तमाम कंपनीज जो हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर थे स्टेट के। ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में थी, डिट्रॉइट वगैरह में, तो जॉइंट वेंचर का मकसद ये था कि नॉलेज एकदम से बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आप यहाँ पर फैसिलिटी उन्होंने जगह दी, और वहाँ पे कहा कि ठीक है, ये हमारा फंड है, आपने क्या करना है कि सारी नॉलेज को यहाँ पर सेटअप करना है, विद इन अ ईयर यहाँ पर आपने ये प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है। और उसके लिए चाइनीज इंजीनियर्स अवेलेबल थे वहाँ पर। तो उससे यही कि वही चीज़ जो डिट्रॉइट में बनती थी वो 10 टाइम्स चीपर चाइना शंघाई में बननी शुरू होगी। बॉश तो बॉश ने क्या किया कि ठीक है, हम मैन्युफैक्चरिंग मूव कर रहे हैं यहाँ से डिट्रॉइट से शंघाई में। इवन ये कि अपनी कार्स की भी वहां से बनकर आती हैं, चाइना से मोटर कंट्रोलर्स वहां जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि बॉश और कॉन्टिनेंटल को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि जितने सप्लाई चेन है, क्योंकि जब हम क्रिएट करेंगे ये तो वो ऑटोमेटिकली आएंगे कि डिमांड है, पाकिस्तान के अंदर डिमांड है, वो खुद ब खुद आएंगे,
तो ये इस सप्लाई चेन की बात कर रहा हूँ कि जो Correct. पहले से डेवलप्ड है, डेवलप्ड है। हम री इंजीनियर नहीं करना चाह रहे कि वो दोबारा से री इंजीनियर करें। We जो don't, है we definitely पाकिस्तान में should आए। not be doing it. What we want to do is this, हम जो ऑफर कर रहे हैं ना सबको कि भाई हर बिजनेस मॉडल के अंदर लोगों को अगर आप ये ऑफर करेंगे यार whatever you are making now, utilizing this innovative method of saving the planet also at the same time and making more profits for you, are you interested in working with us? तो कोई मना तो नहीं करेगा ही नहीं कि यार आई डोंट वांट टू बिकम अ क्लाइमेट स्मार्ट कंपनी। वो डेफिनेटली आएंगे और हम चाहते हैं कि जो बेस्ट ऑफ बेस्ट दुनिया में जो अवेलेबल है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवल की बात नहीं हो रही, जो करंटली एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द रिनाउंड जापानीज कंपनीज, कियोसेरा है और फैंटास्टिक इंडस्ट्रीज जापान के अंदर है। तो वो सारी जापानीज टेक्नोलॉजीज भी जो है ना, टोयोटा ऑब्वियसली इज लीडिंग इन द वर्ल्ड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो वो सारी टेक्नोलॉजीज जो है ना, जो दुनिया में बेस्ट हो ना, वो सारी टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में हम लेके आए। और हम कहें कि भाई जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगा पाकिस्तान में वो किसी भी लोअर स्टैंडर्ड का नहीं होगा और वो सारे स्टैंडर्ड मीट करेगा। क्योंकि मतलब एज अ पीएनजी मैनेजर आई कैन से दैट पीएनजी का जो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है इट्स बेटर देन आईएसओ, बिकॉज आईएसओ को हमने क्रिएट किया है, ठीक है ना, आवर स्टैंडर्ड्स आर सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो यूज एयरक्राफ्ट और वो बड़ी बड़ी जो मेजर इंडस्ट्रीज जो है ना वो पीएनजी के मैनेजमेंट सिस्टम पे चलती है, तो वो हमारे पास डेफिनेटली है। और फिर हमने कहा कि हमने उस स्टैंडर्ड को अब हमने क्लाइमेट स्मार्ट बना दिया। तो क्लाइमेट स्मार्ट स्टैंडर्ड अगर कोई मीट करता है, which essentially means that all the waste associated, virtual as well as physical waste, gets eliminated when you apply the climate smart standard. And climate smart standard is free. It's not, you don't have to pay, like you have to pay for ISO. It's free. You have to just meet the standard, give the product to us, we'll buy the product from you and give you more profits. ये बिल्कुल सही है। तो ये वाले मॉडल्स कुछ डेवलप किए हैं जो आपके साथ डेफिनेटली हम मिलके रिफाइन करेंगे, इंप्रूव करेंगे इनको, ठीक है ना। और फिर कलेक्टिवली सारी चीजें जब हम अप्लाई कर लेंगे तो व्हाट वी वांट टू डू इज दिस कि भाई अब ये 2022 के अंदर जो है ना, हम कहते हैं ना ये मदीना की हुकूमत में मिरेकल्स होने ही चाहिए। तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान में भी हम मदीना की हुकूमत स्टैब्लिश करें और इंशाल्लाह ताला ये मिरेकल्स करके दिखाए, क्योंकि ये सारा ड्राइविंग फोर्स जो है ना दुनिया का, ठीक है ना, वो किस तरह से भाई एक आदमी चलाता है, ठीक है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को एक आदमी कंट्रोल करता है, ठीक है जी, चाइल्ड उसका आखिरी नाम है, ठीक है जी, और मेरा बायर है वो गोल्ड का, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस दैट यार इकोनॉमिकली आप वाइब्रेंट होते हो ना, if you are economically vibrant, then you can do everything, and then you can talk and really make everybody your friends and partners, because you are yourself economically vibrant as well as you are very fair, and you are not hurting anybody. So we are saying that okay, Mother Earth, nobody should hurt Mother Earth, okay, and whoever is out there operating in the Mother Earth should become climate smart. So that is the model which we want to do, and then we are integrating all the best brains of the world. They should come to our campuses in Pakistan, and wherever they are, because we are establishing our Sam's Aligarh Muslim University campus everywhere, in 10,000 cities. So वो localization का सिलसिला है ना, globalization we call it, global standards applied locally, so that you don't have to ship things, from long distances, utilizing these vessels and aircrafts. तो अब ये कि ये मॉडल के बाद obviously the second one would be maybe we can transform PIA also, our very famous airline Pakistan Airline, into a climate smart airline also, क्योंकि अभी इंडिया में मिरेकल हुआ ना ये छोटा सा, कौन सा पता है ना कि इंडियन एयरलाइंस जो है ना जिसने ओरिजिनली बनाई थी ना, जी जी जी, टाटा को वापस दे दी गई ना, इंडियन गवर्नमेंट ने वापस दे दी। अच्छा, टाटा ने खरीद दी इंडियन एयरलाइन। टाटा owns the Indian airline now. टाटा ने ओरिजिनली भी बनाई थी इंडियन एयरलाइन, they were the creator of Indian airline, and now the Indian government returned that airline back to them,
And in Aligarh Muslim University, there was a special convocation कि टाटा को चेयरमैन को जो है ना ऑनररी डॉक्टरल डिग्री दी गई वहाँ पे. तो इसके ऑनर के अंदर के भाई यू नो आई मीन दे हैव डन सो मच फॉर द कंट्री. तो वो भी अभी उनके भी जो CSR के सारे पैसे हैं ना दुनिया भर की सारी कंपनीज के CSR का बजट भी जो है ना हम 5 या 10% बढ़ा देंगे. वो खैर के काम में ही लगाते हैं ना पैसे सारे. तो वी आर एक्चुअली डूइंग दैट आल्सो फॉर एवरीबॉडी. सो दिस इज द economic vibrancy model, and then we are not simply economically vibrant, but we are technologically in all aspects of running a value chain. We are experts in that. तो ये जब सारी बातें combine हो जाती है ना, then people can simply say that okay, we cannot really, we have to be complementing with them. तो मैं अभी ये दुबई का एक्सपो हुआ था ना, तो उसमें अंदर हम एक मैसेज दे के आए थे 2 साल पहले कि भाई become climate smart or dig your grave. So there are only 2 choices. Because if I can sell my climate smart product at a lower cost than yours, we'll buy yours. No doubt. This is what we are after, and we are not really hurting anybody. We are not competing with anybody. We are not even competing with all those industries who are responsible for making our climate worse. We are working with everybody. Okay, and we have to really collectively do that. And when everybody's bottom line gets helped, they will work with you. They don't care, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. और तो अगर उनकी इंडस्ट्री ग्रीन वॉशिंग के बगैर ही क्लाइमेट स्मार्ट ट्रूली बन जाती है, तो इसमें उनको हर्ज नहीं है ना. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. बहुत अच्छा हुआ आपसे बात करके और पॉजिटिवली. और अब ये कि आपसे मैं सारी चीजें शेयर कर लूंगा, ईमेल आईडीज वगैरह हम शेयर कर लेते हैं फेसबुक के ऊपर. और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी डेवलप अ जॉइंट प्लान. और जिस तरीके से भी हमारा एक रिलेशनशिप बनता है ना, जनरली वी कैन डू जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स और वी कैन sort of exchange directorship or whatever, जो मॉडल एक बना लेंगे वर्किंग टुगेदर बेसिकली. ठीक है, बिल्कुल सही है. और इस तरह मिलके इंशाल्लाह ताला वी मूव फॉरवर्ड. ठीक है, थैंक यू वेरी मच साहब. और थैंक यू फॉर शेयरिंग योर प्रोफाइल एंड गिविंग योर टाइम टू डिस्कस. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. हमारी इजाज़त. वालेकुम अस्सलाम. So all Muslims are welcome. All residents of our planet are welcome to join Sam's Tea Kalma Club with 10 pure gold coins to participate in a wonderful project of transforming our Mother Earth into climate smart facility and support all families, ensure that all families enjoy inflation-free total quality life in our 700 homes, the Sam's Wheel of Life Farm School communities, which we are building in global university campuses, and in Sam's Anaheim University Climate Smart Campus Towns, which we are building in Dallas, Texas, Dalat, Vietnam, and Dubai. Shukran jazila. Thank you very much. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik sallim. Warham wa taram kama sallaita wa sallam ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.